اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جنگی ماحول ہے۔ فورسز الرٹ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے پہلگام۔ کشمیر کے اندر ایک چرواہوں کی وادی ہے جو کہ سیاحتی مقام کے طور پہ مشہور ہے۔ وہاں پر حملہ ہوا ہے اور تقریباً 26 لوگوں کو وہاں پہ مار دیا گیا ہے اور تقریباً 17 کے قریب لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس وقت بھارت کے اندر تقریباً سوگ کا عالم ہے اور گورو آریہ جیسے جو بہروپیے ہیں وہ اس وقت آگ لگانے میں مصروف ہیں۔ کبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، کبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر فوری طور پہ ہیپی دیوالی جو ہے وہ شروع کر دینی چاہیے، لائن آف کنٹرول پر آگ لگا دینی چاہیے، پاکستان کا ایسا حلوہ بنانا چاہیے کہ یہ ان کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اور اگر پاکستان آکوپائیڈ کشمیر ان کے مطابق اگر بھارت کا ہے تو پھر لائن آف کنٹرول کا وجود ہی نہیں بنتا، اور ان کو ایسی سزا دیں کہ یہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔ There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan۔ آج کے آج سب کچھ بند کروا دیجئے پردھان۔ بندر کے اپنے پیر جل رہے ہیں، بندر کے اپنے پیر جل رہے ہیں تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، ان کو وہ تکلیف ہو رہی ہے جو پاکستان بڑے عرصے سے برداشت صبر کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اس وقت بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خطے پہ بہت ہی سنگین اثرات آنے والے ہیں۔ میں آپ کو بہت سی انفارمیشن ہے اس حوالے سے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس ڈیولپمنٹ کو لے کے اب اگلے آنے والے دنوں میں معاملات بہت گرم ہونے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ 22 اپریل کی دوپہر کو 2:45 پہ یہیں پہلگام کے پاس ہے بیسا رن میڈوز۔ جس طرح ہمارا فیری میڈوز ہے اسی طرح ان کا یہ ایک وادی ہے، یہاں پہ یہ سیر و تفریح کی جگہ ہے، یہاں پہ لوگ تھے۔ 4 مسلح افراد یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے سیاحوں پر فائرنگ کی ہے، پوچھ کے خواتین کو چھوڑا گیا ہے۔ مجھے فوری طور پہ وہ لمحہ یاد آ گیا جب میجر گورو آریہ جعفر ایکسپریس کے وکٹمز کے دوران جو دہشت گرد تھے ان کو سلوٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیا، تو یہاں پہ اس کو بڑا ہی منہ توڑ جواب ملا ہے جب خواتین کو وہاں سے جانے دیا گیا اور مردوں کو وہاں پہ نشانہ بنایا گیا۔ معصوم جانے ہمیشہ ہی افسوس ہوتا ہے، معصوم جانے چاہے اس سائڈ سے ہوں چاہے اس سائڈ سے ہوں، لیکن یہ انسانی جانوں کا ضیاع کسی بھی مذہب کے اندر اس طریقے سے الاؤ نہیں ہے اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اس وقت ہو چکا ہے اور یہ 1 دہائی کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اب ہوا کیا کہ بھارت وہاں پہ گیم کر رہا تھا کہ جناب سیاحت وہاں پہ چل رہی ہے، نارمیلیسی آ گئی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2016 کے اندر یہاں پہ 13 لاکھ سیاح گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب کرونا آیا تھا تو بالکل یہ تعداد 1 لاکھ سے بھی کم ہو گئی تھی، اور اب ہم نے یہ دیکھا کہ 2024 میں یہیں پہلگام کے اندر 35 لاکھ سیاحوں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا۔ اب یہ پاکستان کے اوپر الزام تو فوری طور پہ لگانا شروع کر دیا ہے بھارت نے، لیکن اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اس کی ذمہ داری لی ہے TRF نے، دا ریزسٹنس فرنٹ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شاید لشکر طیبہ کی کوئی نہ کوئی ذیلی جماعت ہے، لیکن انہوں نے بہرحال یہاں پہ اس چیز کا جواب دیا ہے کہ کشمیر کے اندر اگر آپ بسانے کی کوشش کریں گے لوگوں کو تو اس کا جواب اسی طرح دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تقریباً BJP کی لوگ 500 اکاؤنٹ سے ایک ہی طرح کی ٹویٹ کرتے ہیں۔ امیت شاہ بھی جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے، مودی اپنا وزٹ جو ہے وہ پوسٹ پون کر کے سعودی عرب سے فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے اوپر وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے، جے شنکر سے اور دیگر لوگوں سے وہاں پہ فوری طور پہ میٹنگ کرتے ہیں۔ ابھی یہی نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری لاشیں کہاں گئیں، اور یہ جو جگہ جہاں پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ بھارت کی ایک پوسٹ تھی، وہ ان کو بچانے کے لیے کیوں نہ آئے جب یہ سارے کی سارا خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ 3 لوگوں کی شناخت جو ہے وہ ہو چکی ہے،
उनके स्केच भी बना लिए गए हैं, जिनमें एक आसिफ फौजी है, एक सुलेमान शाह है और एक अबू तला है। अब पता नहीं किसके कहने पे, किसके देखने पे वो स्केच बना लिए गए हैं और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर हैं। अब हुआ क्या है कि देखिए 2019 में जब भारत ने एक खसूसी हैसियत दी थी, कश्मीर को 2 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया था। यहाँ पे जो शहरी हैं, भारतीय शहरियों को इजाज़त दे दी थी कि वो यहाँ पे पैसा लाएं, ज़मीनें खरीदें, यहाँ पे वो बस सकते हैं। तो अब इसी आबादी जारियत का जवाब दिया गया है वहाँ के लोकल लोगों की तरफ से, और ये कहना है उस तंजीम का जिसने ये सब कुछ किया है। अब इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त हो ये रहा है कि पार्लियामेंट्री पैनल था एक, जिसने कश्मीर में जाना था 25 अप्रैल को, लेकिन उनको ये बात खबर मिल गई थी कि यहाँ पे सियाहों के ऊपर हमला हो सकता है, और उसके बाद उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि भारत ने इस धमकी को क्यों इतना इजी लिया, क्यों पार्लियामेंट के लोगों की जान बचा ली गई। मोदी का भी कहा जा रहा है कि एक विजिट वहां पे था जिसको सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पे कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन मासूम जानों को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमले के बाद क्या होने जा रहा है। देखिए 2 एटमी ताकतें हैं, खतरनाक किस्म का तनाव पैदा हो चुका है, पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया गया है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग इस वक्त की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोप समेत काफ़ी ममालिक ने इस हमले की मजम्मत की है, और साथ में ये पैगाम भी दिया है कि आम शहरियों को निशाना बनाना जो है वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, लेकिन आप इसकी वजह कुछ भी हो, आप इसको दहशतगर्दी है या कुछ भी है या सियासी एजेंडा है, आप इसको वजह जंग नहीं बना सकते। अब इस वक्त 2 मुमकिना मकासद जो हैं इसके हमले के सामने आ रहे हैं। एक मकसद तो ये है कि किसी भी तरीके से जो कश्मीर का मसला है उस पर लोगों की तवज्जो दिलाई जा सके और ये बताया जा सके, आलमी मीडिया की तवज्जो इस हवाले से इस तरफ डाली जा सके। और जबकि जो दूसरा मकसद है इस हमले का, वो काफ़ी हद तक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा माहौल पैदा करना है। अब अगर ये कशीदा माहौल पैदा हो जाता है तो हम ये देख रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं होगा कि एक बड़े हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हुए हैं। कारगिल के मौके पे इंतहाई हालात कशीदा हुए थे, पार्लियामेंट पे जब हमला हुआ था भारत की उस वक्त बड़े हालात कशीदा थे, पुलवामा अटैक किया गया, और हर बार जो इल्ज़ाम है वो कशीदगी बढ़ती है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है और उसका नुकसान जो है वो आवाम पे आता है। अब कहा यह जा रहा है कि क्या ये दोबारा से जो सब कुछ होने जा रहा है ये एक नए सिलसिले की कड़ी है। अब इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो हैं वो कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे जिसने भी ये किया है, और जो इनके पीछे बैठे हुए हैं उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। किसको नहीं पता कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो भाई हर रोज जो हम अपनी तैयारियों के हवाले से वीडियोस कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में किस तरफ जा चुका है। हमें पता है कि आपने $100 अरब का असला कन्वेंशनल वेपन्स खरीदे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से जंग करने के लिए। हमें आपके मकासद का पता है, इसलिए हम भी यहाँ पे तैयार बैठे हैं। आपने जो करना है और जो आप कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 एटमी ताकतें, एक मकबूजा वादी और खित्ते में मुसलसल कशीदगी। क्या पहलगाम हमला एक नई जंग का आगाज है? भारतीय अवाम को इस वक्त शदीद गुस्सा दिलवाया जा रहा है। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। पाकिस्तान के अंदर भी एक तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से बेचैनी पैदा की जाए, और इस वक्त जो कश्मीरी अवाम है वो बेचारी पिस रही है और दुनिया जो है वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग इसके ऊपर गौरव आर्य जैसे तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब गौरव आर्य साहब, मुझे आपकी ये समझ नहीं आती, आपने जो ऑप्शंस बताए फौरी तौर पे इसके इकदामात के
کہ फौरी तौर पे पाकिस्तान को इंडस वाटर जो बेसन ट्रीटी है उससे वॉकआउट कर जाना चाहिए। हाई कमीशन जो है अपना वो वापस बुला लेना चाहिए। आपने इसके साथ कहा कि जनाब क्रिकेट बंद कर दें जी, फिल्म बंद कर दें, तो भाई आप भी पाकिस्तान के ऊपर वीलॉग बंद कर दें, आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आप भी थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ बाइकआउट करें और आज ये फैसला कर लें कि मैंने आज के बाद पाकिस्तान पर न पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना अपनी जुबान से। दो लोगों को कहना बहुत आसान है लेकिन खुद करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो मोदी जी को कहा जा रहा है कि जब बलोचिस्तान के अंदर आप ये करें, हम शरीफ हो गए हैं, तो उन्होंने बदमाशी शुरू कर दी है। 1948 में तुम्हें बिछाया था और बिछा के ये कश्मीर यहां पे लिया था। 1965 में फिर तुम्हें बिछाया था और बार बार बिछाया। 1971 के अंदर भी तुम्हारा बुरा असर किया था। बेशक हमारे अंदर से गद्दारी हो गई थी जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ। कारगिल की जंग में तुम्हें बिछाया और तुम्हें 70 सालों से जगह जगह हर गली मोहल्ले के अंदर हम बिछा रहे। तुमने उखाड़ना है तुम उखाड़ सकते हो, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं वही असल एजेंडे के ऊपर है मोदी जैसे लोगों की, क्योंकि सियासी एजेंडा पूरा करना होता है, दूसरे मकासद को हासिल करना होता है। आप मुझे एक बात बताएं, 2007 के अंदर समझौता एक्सप्रेस हुई, 62 लोग जहां बहक हुए, पाकिस्तान का नाम लिया गया। फिर पीछे से कौन निकला? पीछे निकला हिंदू इंतहा पसंद मेजर रमेश। उसका किरदार सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उसने ये सारी हरकतें की थी। 2008 के अंदर बंबई हमले हुए जिन्हें भारत ने इक़वामे आलम के सामने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन 2013 में ही साबिक सीबीआई अफसर सतीश वर्मा ने इंकशाफ किया कि बंबई हमले भारत ने खुद कराए ताकि सख्त कवानीन पास किए जा सकें। 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, 40 फौजी हलाक हुए। मोदी सरकार ने फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, मगर साबिक गवर्नर के इंकशाफात ने भारतीय साजिश का भांडा फोड़ दिया। देखें, ये जो तमाम हमले हैं इनकी पैटर्न की निशानदेही करना जरूरी है। इलेक्शन करीब होते हैं, सियासी दबाव बढ़ रहा होता है, कामकाज कोई किया नहीं होता, कमीशन माफिया के साथ मिले होते हैं, दिफा भी इन्होंने ठेके पे दिया हुआ है, सेना जो है इन्होंने अपनी जाति बना ली है, और फिर उसके बाद इनको कुछ समझ नहीं आता तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करना शुरू कर देते हैं। अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है और फिर उस बयानिए की बेस पे वोट हासिल किए जाते हैं। इसीलिए जो गोबर आर्य जैसे लोग हैं वो फौरी तौर पे अपना मंजन बेचने के लिए और वोट बनाने के लिए और जज्बात भड़काने के लिए तैयार हुए हैं और अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। जब कभी किसी किस्म की राफेल टाइप या असले की डील का मसला होता है उस वक्त भी इस तरह की हरकतें की जाती हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 7 लाख वहां पे भारतीय फौजी हैं, अगर देखा जाए तो हर 7 लोगों के लिए एक फौजी वहां पे मौजूद है। शर्म से डूब मरना चाहिए कि 7 लाख फौज एक इतने से इलाके के अंदर लगाने के बावजूद भी तुम इस तरह के दहशतगर्द के हमलों को तुम नहीं रोक पा सकते। अब बात यह है कि अब फौरी तौर पे कार्रवाइयां की जा रही हैं और आज के दिन यानी 23 अप्रैल को भारत ने दावा किया कि उसने जी सरजियोर सेक्टर के अंदर 2 दरअंदाजों को मार दिया गया है। साफ सुथरी उनकी लाशें हैं, चमकते हुए उनके जूते हैं, नजर ही नहीं आ रहा किसी भी लिहाज से कि कोई ऐसा मुकाबला कहीं यहाँ पे हुआ भी है कि नहीं हुआ। और इसके अलावा 2 लोगों को जो मारा गया है, मलक फारूक और मोहम्मद दीन को, वो वहां के मुकामी शहरी हैं। बहरहाल आलमी बरादरी को चाहिए कि भारत के जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा है, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, इसका बड़ी सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भी इस वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि मामला जो है भारत के अंदर बहुत ही गर्म है। मीडिया एक्टिव हो चुका है, पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मोदी जैसे लोग, आपको पता है कि कोई भी मकासद हासिल करने के लिए, किसी भी किस्म का ड्रामा करने के लिए तैयार हैं। तो हमें भी एक और अभिनंदन इनके पास दोबारा भेजने के लिए मोहतात और तैयार रहने की जरूरत है। अभी तक के लिए इतना ही। इस इशू के ऊपर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आइंदा तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।